Marcus and we are back with rotational motion as we were trying to study quantum mechanics, but today's topic is again rotational motion in just a mathematical form of way. So here is the point name, that is relating the angular and linear variables. अभी तक हमने पढ़ा था linear variables, पहली बात तो like linear position, linear displacement, linear speed, linear acceleration, linear velocity, and उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इस चैप्टर में all about angular position, angular displacement, angular speed, angular velocity and angular acceleration. लेकिन इन दोनों के बीच जो रिलेशन होगा वो क्या होता है? व्हाट्स रिलेशन? कुछ रिलेट तो हम लोग कर ही सकते हैं, ऑब्वियस सी बात कर सकते हैं. ओके, ऑफ कोर्स ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन कैन बी इन some kind of way, can be related to each other. So we are just going to do that. And again, starting the video with a common example. Always starting the video with a common example. I suppose a rigid body. मैं कोई भी rigid body suppose करता हूँ. अब ये जो मेरी rigid body है, पहली बात तो मैं अपना XY plane बना सकता हूँ, of course बना सकता हूँ. यहाँ पे मेरा origin X axis, Y axis. अब इस ही रिजिड बॉडी को मैं रोटेशनल मोशन में भेज रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू क्रिएट इट्स ओन रोटेशनल मोशन. ये बाद में रोटेशनल मोशन करने लगी. अब इफ इट इज मूविंग विद सम लीनियर स्पीड, पहली बात तो चलो पहले स्पीड छोड़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी, सपोज जब ये रोटेशनल मोशन कुछ काइंड का कर रही है इन अ रेडियस, ओके, कोई भी रेफरेंस लाइन हो, सपोज इन अ काइंड ऑफ रेडियस, इस सर्कल में कर रही है. दिस इज द सर्कल इन विच रोटेशनल मोशन इज ऑकरिंग एंड दिस डजंट सीम एक्चुअली अ सर्कल. ये कुछ रिजिड बॉडी है, ऐसे रोटेशनल मोशन हो रहा है. दिस डजंट सीम अ सर्कल, बट वी हैव टू सपोज इट इज अ सर्कल विद सम काइंड ऑफ रेडियस नोन एज आर. वी सपोज द रेडियस एज आर. अब अगर ये बॉडी किसी, सपोज सिंस इसका रेडियस तो आर है ही, इनिशियल रेफरेंस लाइन कुछ इधर है, फाइनल कुछ इधर है. सो दिस इज इनिशियल रेफरेंस लाइन, ये रहा फाइनल रेफरेंस लाइन. रोटेशनल मोशन हो रहा है भाई. देन इट्स चेंज इन एंगुलर पोजिशन. पहली बात तो चेंज इन एंगुलर पोजिशन विल बी व्हाट, ऑफ कोर्स वी कैन सी दिस विल बी हियर डेल्टा थीटा. ओके, दिस इज डेल्टा थीटा. And if this is r, then this is also r. If this is r, this is r, and this is delta theta. Suppose इतना जो distance travel हुआ है, that is s. तो according to maths हमें बोलते हैं यहाँ पे जो मेरा theta रहेगा, that will be s divided by r. And if my theta is s divided by r, of course theta will be s divided by r. This, okay, here is, ये जो मेरी क्वांटिटी रहेगी, दिस विल बी, अगर ये किसी काइंड का एंगल है, दिस विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस. ओके, द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय में रेडियस ऑफ द सर्कल. एंड वी कैन जस्ट लुक, हियर इज परपेंडिकुलर. अब यहाँ पे दिस इज ऑल स्टेटमेंट ऑफ मैथ्स. वी डू नॉट रियली एक्चुअली नीड टू गो टोटल इन मैथ्स, but we just know this. And according to this kind of thing, I get something called S equals R theta, the relation between linear distance traveled and the, we can just see S is R theta and the angular position. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं it is the linear distance and the here you can call it whether linear distance or linear, you may call it displacement, but actually displacement is a straight line. And if we also go at very small level, so this curve also starts just looking at straight lines. Okay, so this is s equals r theta, the relation between angular displacement and linear displacement. तो ये तो बहुत easy हो गया. This is just too easy. इसको हम लोग बोलते हैं relation between the terms s and theta. s equals r theta बोलो या फिर s equals theta r बोल दो. And once we know the relation between those quantities, अगर मुझे इन quantities के बीच का relation पता है, so what I can just try next is, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, if I differentiate both the sides with respect to time,
So I get something like this here. अब ds by dt is what? Is rate of change of position, linear position. ये मेरा s हो गया position. So rate of change of linear position with respect to time. अब rate of change of linear position with respect to time को हम लोग linear velocity बोलते हैं. Okay, it cannot be angular velocity. It is must sure to be linear velocity. Suppose जैसे मैं कोई भी common example ले लेता हूँ, ये body है मेरे पास, ये translatory motion कर रही है, ये कुछ ऐसे ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, इधर लीनियर पोजीशन चेंज हो रहा है, तब इसकी जो वेलोसिटी होगी उसको मैं लीनियर वेलोसिटी बोलूँगा. ये कोई एंगुलर और ये कोई रोटेशनल मोशन तो कर नहीं रही. सपोज रोटेशनल मोशन कर रही है तो एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है. तो एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है किसकी वजह से? एंगुलर वेलोसिटी की वजह से. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर पोजीशन इज कॉल्ड द, here we can call it linear speed. So this is linear speed v. Since अब अगर मेरा ये v है इक्वल्स में, सिंस r मेरे यहाँ पे कांस्टेंट है, ऑल्दो मेरी जो ये एंगुलर पोजीशन है ये चेंज होती जा रही है, बट r मेरा हर बार कांस्टेंट रहेगा बिकॉज इट इज़ अ परफेक्ट सर्कल. द सर्कल डजंट सीम टू बी परफेक्ट बट वी नीड टू एज्यूम इट टू बी परफेक्ट. तो यहाँ पे मेरा रेडियस चेंज नहीं होगा, दिस विल बी अ कांस्टेंट. जब r कांस्टेंट रहेगा, r को बाहर निकाल लो, दिस इज द d थीटा बाई dt एंड दिस इज फाइनली r इंटू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन. इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे. सपोज यही एग्जाम्पल मैंने लिया था, इसी को अगर मैं रोटेशनल मोशन कर रहा हूँ तो ये कुछ अपनी एंगुलर पोजीशन ऐसे भी हो सकता है, द सेम लिटिल मच परफेक्ट. अगर ये कुछ इस तरह से रोटेशनल मोशन कर रहा है, सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एंगुलर पोजीशन, पहले कुछ ऐसा था फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? एंगुलर वेलोसिटी की वजह से हो रहा. दैट्स व्हाई वी जस्ट से इट टू बी ओमेगा, आई मीन एंगुलर वेलोसिटी. And the final equation we get in here is V equals omega r. We just get the relation as V equals r omega या फिर omega r. इसी को आप थीटा r लिख सकते हो, r थीटा, this is omega r या फिर r omega भी you can just call it. तो ये तो हो गई इसके बीच रिलेशन, इनके बीच रिलेशन. अब क्या करना है? Only what is to continually differentiate with time. Suppose इसको भी मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, then what will I get? Then is something like getting d of r omega by dt, and you can just find यहाँ से हम लोग को acceleration मिलने वाला है. From here we'll be getting acceleration, but I'd also like to tell you some other thing before moving to the acceleration and getting in all of it, कि जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो इसका एक टाइम इंटरवल होता है कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन. क्योंकि यहाँ पे जो भी बॉडी है, जस्ट लाइक यहाँ पे पहली बात तो कि जो v और ओमेगा जिस तरह से हमने इन्हें रिलेट किया है, हाउ द v एंड ओमेगा रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक बात बहुत ही क्लियरली ये इक्वेशन समझाता है कि जितना बड़ा मेरा r होगा, रिमेंबर जितना बड़ा मेरा रेडियस ऑफ सर्कल होगा उतना ही बड़ा मेरा लीनियर स्पीड रहेगा. जस्ट लाइक सपोज फॉर वेरी कॉमन एग्जांपल यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इफ यू सिट ऑन अ मैरी गो राउंड, अब जितना लंबा इट्स रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन यू आर गोइंग इन होगा उतना ही मतलब आपकी लीनियर स्पीड रहेगी, एंड इन ऑल ऑफ दैट यू जस्ट फील वेरी स्ट्रेंज फीलिंग. ओके, दैट इज इट. या फिर अगर सपोज यू कैन टेक अ वेरी अदर कॉमन एग्जांपल कि जस्ट लाइक अगर इसी का मैंने रेडियस विद बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स, इसी मार्कर का जो सर्कुलर मोशन करने वाला है इसका मैंने रेडियस इंक्रीज कर दिया तो इसकी लीनियर स्पीड भी इंक्रीज होने वाली है. लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन एक और बात बहुत ही क्लियरली बोलता है दैट ओमेगा इज v बाई आर. अब ओमेगा इक्वल्स v बाई आर का मतलब होता है कि जितना बड़ा रेडियस ऑफ द सर्कल, बेसिकली वी कैन नॉट जस्ट स्टेट इट कि ओमेगा इज कांस्टेंट. ओमेगा आप जहाँ भी करो, ओके, वेदर यू आर सिटिंग एट वेरी क्लोज ऑफ द रेडियस और एट वेरी फार, बट ओमेगा will be the same. ओमेगा कांस्टेंट रहता है, मतलब it
it is not constant at all. You may say omega doesn't depend on the radius. Omega radius of the circular motion पे depend नहीं करता, while linear speed depend करता है when they are just proportional to each other. And as I was just talking about the time period, इसका जो time period of circular motion ये मतलब होता है कि for completing a single revolution कितना time इसने लिया. So for completing a single revolution, एक revolution में, so suppose initial reference line यहाँ है, ये rotational motion कर रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पे वापस आ जाएगा, एक revolution complete हो गया. मुझे पता करना है इसका time period of circular या फिर rotational motion क्या है. मतलब कि ये पूरा rotational motion इसने कितने time में complete किया, इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं. अब जो टाइम मेरा होता है दैट इज व्हाट, ये मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड रहता है. टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड. यहाँ पे कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रैवल्स. यहाँ पे ये कुछ इस तरह में जा रहा है. तो अगर मैं इसे बोलूँ कि वन पूरा रिवॉल्यूशन एज वेल एज मैं इसे एक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल भी तो बोल सकता हूँ. ओके, इट इज गोइंग समथिंग लाइक दिस. यानी कि ये 360 डिग्री से जा रहा है, इतना एंगुलर पोजीशन चेंज हुआ है बाय 360 डिग्री, यानी कि दैट इज व्हाट, दैट इज 2 पाई रेडियन. सो यहाँ पे जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट विल बी 2 पाई रेडियन. अब उसके बाद में एज दिस इज 2 पाई रेडियन एंड ये तो मेरा डिस्टेंस हो गया डिवाइडेड बाय में स्पीड. And finally we just get that. अब यहाँ पे यूनिट देखें, so this is in radian, this is meter per second. Okay, and basically this is S. Okay, I'm sorry, this is 2 pi r. Yep, that is 2 pi r radian, because it is completing the circumference of a circle. और circumference of a circle, suppose मैं इसे C बोलता हूँ, is 2 pi r. इसको हम लोग 2 pi r as a whole बोल सकते हैं. So this is time period, what we say is 2 pi r by v. इसी को अगर मुझे ओमेगा टाइम पीरियड को ओमेगा से रिलेट करना है तो I just get something kind of thing. This is 2 pi r by v. v को मैं लिख सकता हूँ as r omega. So I get it 2 pi r by r omega. Here is 2 pi by omega. यानी कि जो टाइम पीरियड में होता है इज 2 pi by omega, okay, in seconds, and as well as here is as well as the 2 pi r by v. So you can calculate through both of these formulas. अगर चाहो तो दोनों फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. v दिया हो तो इससे कैलकुलेट कर दो, अगर v एंड r गिवन है, नहीं गिवन है और सिर्फ ओमेगा दिया है, so you can also calculate by this kind of formula. चलो, so basically this is known as the time period of revolution या फिर time period of rotational motion. Sometimes we call it circular motion because there is not much difference between rotational motion and circular motion. क्योंकि यहाँ पे इस rotational motion में ये rigid body में जितने भी particles present हैं they undergo some kind of circular motion. रिजिड बॉडी एज अ होल रोटेशनल मोशन कर रही है, लेकिन इसमें रखे एक एक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स, सो दे आर अंडरगोइंग अराउंड सर्कुलर मोशन. चलो, दिस वी हैव गॉट. अब बैक टू अवर पॉइंट, dv by dt इक्वल्स dr ओमेगा by dt. यहाँ पे मैंने v को अपनी स्पीड सपोज किया था. इसका मतलब बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं dv by dt एज अ होल मेरा एक्सेलरेशन नहीं रहेगा. इट विल बी नॉट पर्टिकुलरली माई एक्सेलरेशन. अगर एक्सेलरेशन बोल दें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे हमारा डायरेक्शन पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा. इसको मैंने लीनियर स्पीड सपोज किया था. एज ये जो s था मेरा लीनियर डिस्टेंस था, इसीलिए v भी मेरा लीनियर स्पीड था. इसीलिए यहाँ पे डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं है, इसको आप एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते. लेकिन सिर्फ हम लोग सपोज करो कि एट दिस पॉइंट जो मेरी स्पीड थी कुछ इस तरह से जा रही थी. तो दिस हम लोग देख सकते हैं कुछ टेंजेंट है, टेंजेंट टू दिस काइंड ऑफ थिंग.
ओके टू दिस पॉइंट एंड स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर टू दिस, यहाँ पे कुछ इस तरह से रहेगी परपेंडिकुलर, सो इट इज टेंजेंट। तो दिस काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, ये किसी काइंड का एक्सेलरेशन है, लेकिन पर्टिकुलरली एक्सेलरेशन नहीं बोल सकते। ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारी लीनियर स्पीड को चेंज कर रहा है, ना कि लीनियर वेलोसिटी को। और एक तब यहाँ से कंक्लूजन मिलता है कि दो तरह के यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें देख सकते हैं, एक होगा जो लीनियर स्पीड को चेंज करेगा और दूसरा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन को। जब दोनों कंबाइन करेंगे सो दे विल बी चेंजिंग एंटायर लीनियर वेलोसिटी। तो यहाँ पे इसको हम लोग लीनियर स्पीड की मैग्नीट्यूड ये चेंज कर रहे हैं, यानी लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे r इज़ अ कांस्टेंट, r तो कांस्टेंट रहेगा डी ओमेगा बाई डी टी। अब डी ओमेगा बाई डी टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, इज r टाइम्स अल्फा। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ से मुझे एक कंक्लूजन मिलता है दैट ए टेंजेंशियल इज आर अल्फा। दिस इज माई फाइनल इक्वेशन फॉर समथिंग लाइक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस दिस काइंड ऑफ थिंग इस लीनियर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, यानी लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है। तो जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, क्योंकि सर्कुलर मोशन ऑल द पार्टिकल्स आर डूइंग, द रिजिड बॉडी एज अ होल इज डूइंग रोटेशनल मोशन, तो जो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है दैट विल बी कॉज्ड इट मींस बाय सम अदर एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं समथिंग कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। दिस इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका मैग्नीट्यूड v स्क्वायर बाय r होता है। ओके, दिस इज v स्क्वायर बाय r। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज अप्लाइड रेडियली इनवर्ड। ये एक्सेलरेशन हमेशा अंदर को सेंटर के टुवर्ड्स ही रहता है। इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। जहाँ कहीं भी पार्टिकल हो ये एक्सेलरेशन एकदम सेंटर पे ही लगा रहेगा, रेडियली इनवर्ड। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इनवर्ड ही क्यों लगता है? क्योंकि अगर ये इनवर्ड लग रहा है तभी ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बाकी अगर बाकी डायरेक्शंस में लगे तो भी तो चेंज कर सकता है, लेकिन हम को वी जस्ट वांटेड ये रेडियल एक्सेलरेशन सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे, बल्कि इसके मैग्नीट्यूड को ना चेंज करे। इसीलिए अगर ये सिंस हम सपोज इस पॉइंट पे कहीं पे मेरी वेलोसिटी कुछ लीनियर स्पीड इधर लग रही है, तो एक्सेलरेशन जो रेडियल वाला होगा इधर लगेगा, तब द टू आर परपेंडिकुलर। हर केस में हर पॉइंट पे द टू आर परपेंडिकुलर। और जब ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे तब ही इसकी वजह से, इस एक्सेलरेशन की वजह से कोई भी चेंज इन डायरेक्शन नहीं होने वाला है। अदरवाइज अगर ये कुछ इस तरफ से रहेगा सो देयर विल बी अ चेंज इन डायरेक्शन। इसीलिए बोथ रिक्वायर टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब ये परपेंडिकुलर रहेंगे इनका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा ये जीरो रहेगा। स्टिल वी नो यहाँ पे परपेंडिकुलर का मतलब डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जीरो ही रहता है। That's why it cannot change the direction of linear velocity. Okay, we just know that now. Because if I'd also like to elaborate it more, something like अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ, रेडियल एक्सेलरेशन कुछ इधर लगता होता तो कुछ एंगल बन रहा है बिटवीन द टू, थीटा नहीं, हम लोगों ने ऑलरेडी सपोज किया था। कोई और सपोज मेरा फाई मैं सपोज कर लेता हूँ, फाई एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ तो एक्सेलरेशन का v के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, और अगर v के डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा तो ये v का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। लेकिन अब ये तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही सकता है, ओके ऑफ कोर्स कर सकता है, ये इधर भी लग जाएगा इधर भी, लेकिन v का मैग्नीट्यूड भी चेंज कर लेगा। लेकिन मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ए टेंजेंशियल है, वी डू नॉट रिक्वायर ए रेडियल टू चेंज द मैग्नीट्यूड। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए टेंजेंशियल ही चेंज करे। दैट्स वाई हम इसे इसके परपेंडिकुलर रखते हैं, ताकि डॉट प्रोडक्ट जीरो हो, ताकि इसका इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ना हो एंड इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। अब वी स्क्वायर बाई आर को आप एक और चीज़ लिख सकते हो, वी स्क्वायर बाई आर, वी जस्ट रिमेंबर इट।
v क्या होता है, r ओमेगा होता है, तो v स्क्वेयर इज r स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर, और ये हो गया r ओमेगा स्क्वेयर। तो v स्क्वेयर बाई r लिखो या फिर r ओमेगा स्क्वेयर लिखो, दोनों एक ही बात है, बोथ लीड टू द रेडियल एक्सेलरेशन। और यहाँ से अगर मैं एक सच बात बताऊं तो इसी रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन दोनों सेम है, एज रेडियल इनवर्ट तो रेडियल एक्सेलरेशन, और इसी को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेंट्रीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल का मतलब सेंटर सीकिंग होता है, एंड दिस इज टुवर्ड्स सेंटर सीकिंग, दिस इज सेंटर सीकिंग, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेड टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये वही एक्सेलरेशन होता है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एक्सेलरेशन दैट द अर्थ ऑर्बिट्स द सन। ओके, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के अकॉर्डिंग टू न्यूटन एंड अदर ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ पर्टिकुलरली द फील्ड ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जब अर्थ जाती है अराउंड द सन वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अट्रैक्ट करता है, सन की ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से अर्थ में कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स आता है दैट इज एक्टिंग एज ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी सेंट्रीपिटल फोर्स की मदद से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से यानी रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से अर्थ का जो डायरेक्शन होता है अराउंड द सन वो चेंज होता रहता है। Earth's direction is getting changed, वरना Earth would directly get into the sun and that would be a disaster. So Earth का direction change होता रहता है. So from here we can understand what is the how necessary is the radial acceleration and how necessary is radial acceleration to be having to perpendicular to the linear velocity. So I think that would be enough for relating the angular and linear variables. That was just enough for today. Hope you liked and enjoyed the video. Thanks to all viewers for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat.